بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ عہد نامے کی عبارت ختم ہو چکی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی روح میں ایک عجیب قسم کی تبدیلی اور گداز سا محسوس کیا۔ میں نے جو کچھ زبان سے ادا کیا تھا، اس کا ایک ایک لفظ مجھے اپنی روح کی آواز محسوس ہو رہا تھا۔ مجھ پر ایک بے خودی کی سی کیفیت طاری تھی، اور ایسی کیفیت میں نے اپنی طرف ایک خنجر بڑھتا ہوا دیکھا۔ یہ ناہید تھی جس نے میری طرف خنجر بڑھایا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ دریافت کرتا، اس نے کہا، اس عہد نامے کی سرخروئی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے خون سے اس پر دستخط کرو۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیا سحر تھا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے اس کے ہاتھ سے خنجر لیا اور اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی سے خنجر کی نوک اتار دی۔ انگلی سے تازہ تازہ خون ابلنے لگا۔ اسی دوران امین اللہ نے میری طرف سرکنڈے کا ایک قلم بڑھا دیا۔ میں نے انگلی سے بہتے ہوئے خون میں اس قلم کی نوک بھگوئی، اور پھر عہد نامے پر میرے دستخط ہو گئے۔ ابھی دستخط کر کے میں نے عہد نامہ نہید کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ کمرے میں ایک نورانی صورت والا شخص داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی آمد کا احساس لوگوں کو ہوا، سب کے سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا، اور جسم پر ڈھیلا ڈالا لبادہ، ہاتھ میں تسبیح تھی جس کے دانے گردش کر رہے تھے۔ گھنی داڑھی، بڑی بڑی آنکھیں اور دراز زلفیں اس کے باری برکم شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس شخص کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ اس نے کمرے کا سرسری سا جائزہ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے سب لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھا۔ ناہید اور امین اللہ جس بستر پر بیٹھے تھے، وہیں وہ شخص بھی سلیقے سے آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں مبارک ہو نوجوان کہ تم نے نیکی اور سچائی کی راہ منتخب کی ہے۔ سوائے میرے باقی تمام لوگ تمہاری شخصیت سے ناواقف ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری تنظیم میں تمہاری شمولیت ہمارے لیے بڑی ہمت رکھتی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ اور بھی مضبوط ہوں گے۔ پھر وہ شخص بقایا لوگوں کو مخاطب کر کے بولا، میں تنظیم کے امیر کی حیثیت سے تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ آج ہمارے درمیان جو شخص موجود ہے، وہ چند ایسی ناقابل فہم پرسرار قوتوں سے مالا مال ہے جو ہماری تنظیم کے لیے مستقبل میں نہایت سودمند ثابت ہوں گی۔ ہرچند کہ یہ نووارد نوجوان تمہاری طرح ابھی آزمائشوں اور امتحانوں سے نہیں گزرا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے پائے کا استقامت میں لرزش نہیں آئے گی، اور تم اسے اپنا وفادار اور معاون پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص خاموش ہو گیا، اور اس کے خاموش ہوتے ہی ناہید بولی، اے امیر، آپ بڑی نیک ساعتوں میں تشریف لائے۔ اس اجنبی نوجوان کے لیے جو اب ہمارے لیے اجنبی نہیں رہا، یہ بات یقینی باعث سعادت ہوگی کہ آپ با نفس نفیس اس کا نام تجویز کریں۔ تم سب جانتے ہو کہ میرا دایاں بازو ملکہ ہے، لیکن آج سے میں مکمل ہو گیا ہوں۔ مجھے میرے دونوں بازو مل گئے ہیں۔ میرا ایک بازو ملکہ ہے تو دوسرا بازو یہ نووارد نوجوان جس کا نام میں نے ذل رحمان تجویز کیا ہے۔ کیا تم سب کو اپنے امیر عبد الرحمان کی اس تجویز سے اتفاق ہے؟ امیر عبد الرحمان نے مجمع کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سب نے بیک وقت اور یک زبان امیر عبد الرحمان کی تجویز سے اتفاق کیا۔ اب ہمارے اور تمہارے درمیان راز کی کوئی دیوار حائل نہیں۔ امیر عبد الرحمان نے ایک مرتبہ پھر مجھے مخاطب کیا، میں اس شہر میں ان بے سر و آسمانیوں کا امیر ہوں۔ تنظیم کے بارے میں رفتہ رفتہ تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا جائے گا، کیونکہ تم اب ہمارے اپنے ہو، ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہو۔ امیر عبد الرحمان کی باتیں میرے دل میں اترتی جا رہی تھی، لیکن اب مجھے پر بھی لازم تھا کہ ان کی باتوں کا جواب دوں۔ میں نے کہا، ہے امیر، آپ نے مجھے جو عزت بخشی ہے، مجھ پر جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں اس کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی نظروں میں سرخرو
ضرور रहूंगा। आप हमेशा मुझे वफादारों और जान निसारों के साथ में देखेंगे। मैं तुमसे यही तवक्को करता हूँ। जिल्ले रहमान अमीर ने जवाब दिया, ए दो पैमा की वो रात गुजरी तो मेरी जिंदगी में एक नए दौर का आगाज हुआ। अब मैं एक दूसरा ही आदमी था, इस शेख करामत से कतई मुख्तलिफ जो सिर्फ अपने लिए जिंदा था। मुझे अब अपनी जिंदगी बामैनी बामकसद नजर आने लगी थी। तंजीम के बारे में मेरे जहन में पैदा होने वाले मुख्तलिफ सवालों के जवाब हमजाद के जरिए मुझे मिल चुके थे। हमजाद ने मुझे बताया था कि तंजीम के अफराद खुद भी एक दूसरे के असल नामों से वाकिफ हैं और इन सब के जो इस्लाही नाम तंजीम का अमीर तजवीज करता है, इससे वो एक दूसरे को पुकारते हैं। तंजीम के अमीर के अलावा बहुत कम लोग नौवारिद के असल नाम से आगाह हो पाते हैं और रफ्ता रफ्ता नौवारिद का असल नाम इसके हाफजे से भी महव हो जाता है। नाहिद का इस्लाही नाम मलका और अब्दुर्रहमान का असल नाम काजी मियां जान था, जिससे शायद अब कोई वाकिफ न था स्वाय मेरे, क्योंकि मैंने ये तमाम मालूमात हमजाद के जरिए इकट्ठी की थी। वो लोग तंजीम के अफराद को खिदमतगार और जहादी के लक़ब से याद करते थे, इसलिए नाहिद ने भी मेरे लिए खिदमतगार का लफ्ज इस्तेमाल किया था। तंजीम के बकाया तफसीलात भी मेरे लिए बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज जे हरगिज ये तवक्को नहीं थी कि तंजीम इतनी मुनज़्ज़म, हमागीर और बुलंद पैमाने पर चलाई जा रही है। हमजाद की फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक तंजीम के 3 बड़े मरकज थे, कलकत्ता, पटना और पेशावर। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और मद्रास में भी तंजीम की कारगुजारियां तेज। यही नहीं बल्कि हर शहर में, ख्वाह वो यूपी हो या बिहार, पंजाब हो या सरहद, तंजीम के अफराद मौजूद थे जो तंजीम के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके थे। तंजीम का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान से अंग्रेजों के तसल्लुत को खत्म करके आजादी हासिल करना था। इस मकसद के असूल के लिए तंजीम ने जो लाहे अमल मुरतब किया था वो बड़ा अनोखा और चौंका देने वाला था। ये लाहे अमल 1857 की जंग आजादी की नाकामियों को मद्देनजर रखकर मुरतब किया गया था। तंजीम के आला अरकान का ख्याल ये था, अंग्रेजी हदूद में रहते हुए यानी अंदरूने हिंदुस्तान किसी भी तरह अंग्रेजों जैसी ताकत हुकूमत से टक्कर लेना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने अपनी कारगुजारियों के लिए सरहदी आजाद इलाकों को मुंतखब किया था जहां अंग्रेजी तसल्लुत नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी खुफिया तंजीमें काम कर रही थी वो एक ही सिलसिले की कड़ियां थी और इन सब के डांडे ऊपर जाकर एक दूसरे से मिल जाते थे। इस तहरीक का मकसद ये था कि अंग्रेजी हदूद हुकूमत से बाहर रहकर एक अलग हुकूमत के तौर पर जंगी तैयारियां की जाएं और इस पर पूरी तरह अमल कर रहे थे। तंजीम एक तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई थी। तंजीम का एक हिस्सा अंदरूने मुल्क रहकर तंजीम के लिए काम कर रहा था और दूसरा हिस्सा बैरूने मुल्क सरहदी आजाद इलाकों में जंगी तैयारियों में मसरूफ था, ताकि वक्त आने पर वो अंग्रेजों की हुकूमत पर हमला कर सकें और हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद करा। हरचंद के इस मंसूबे को पूरा होने के लिए काफी वक्त दरकार था, मगर ये मंसूबा था काबिल अमल, इसलिए इस पर भी अमल शुरू किया जा चुका था। अंदरूने मुल्क जो लोग काम कर रहे थे, इनके फराइज ये थे कि वो लोगों को तंजीम के अगराज व मकासद से मुत्तमिन करके इन्हें तंजीम में शामिल करे और इन्हें पूरी तरह तरबियत देकर सरहदी इलाके में भेज दें। इनका दूसरा काम ये था कि वो मुजाहिदीन के अखराजात सरहदी इलाकों में इनकी गुजर बसर और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए रुपया फराहम करके आजाद सरहदी इलाकों को रवाना करें। सिलसिले में वो बड़े बड़े मुहिब्बुल वतन सरमायादारों से भी राब्ता कायम रखते थे, ख्वाह वो जमींदार हो या जागीरदार हो, ख्वाह शहर में किसी सनती कारोबार से वाबस्ता हूँ। ये तमाम रकूम इकट्ठी करके सरहद के लिए रवाना कर दी जाती थी। सब काम इंतहाई मोहतात तरीके से अंजाम पाता था। उन्होंने रुपयों के लिए आपस में इस्लाह भी वाज़िया कर रखी थी, जिन्हें वो आपस की खतो किताबत में इस्तेमाल करते थे। वो रुपयों के लिए अपने खतो किताबत में सफेद दानों और अशरफियों के लिए सुर्ख दानों के लफ्ज इस्तेमाल करते थे। तमाम हिंदुस्तान से रुपया इकट्ठा होकर पंजाब के जिला अम्बाला के एक कस्बा में जमा होता था, जहां तंजीम का एक अहम मरकज कायम था और इस मरकज के सरबराह को तंजीम के अफराद पीर खलीफा के नाम से जानते थे। पीर खलीफा अपने खुफिया जराये से ये तमाम रकूम सरहद के आजाद इलाकों के अमीर को रवाना कर देते थे। यही अमीर इस तंजीम का सरबराह था। तंजीम के सरबराह के कई इस्लाह
इस्तिलाही नाम थे। इन्हें बाबू साहब, बाबू जान, खान साहब वगैरह के नाम से याद किया जाता था और इनका असल नाम बहुत कम लोगों के इल्म में था। अक्सर मुजाहिदीन भी इनके लिए रास्ता सरहद के लिए रवाना होते थे। तंजीम के बारे में ये तमाम मालूमात मैंने हमजाद से इस रात ही सुबह ही हासिल कर ली थी, जब मैंने अहदनामे पर अपने खून से दस्तखत किए थे। ये तमाम बातें मालूम करने के बाद अब मेरे सामने एक और मसला दरपेश था। वो अहम मसला ये था कि अगर तंजीम के बारे में ये तमाम इत्तलात जब्बार के जरिए अंग्रेजों तक पहुंच गईं तो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह अपने हमजाद के जरिए मैंने तंजीम से मुताल्लिक सब कुछ मालूम कर लिया था, इसी तरह जब्बार भी अपने हमजाद को काम लाकर ये सब इत्तलात फराहम कर सकता था और अंग्रेजों को बर वक्त होशियार कर सकता था। ये सूरत हाल जाहिर है बे इंतहा खतरनाक हो सकती थी। तंजीम की बरसों की मेहनत खाक में मिलने का अंदेशा था। फिलहाल सबसे पहला काम यही होगा कि कोई भी ऐसी सूरत पैदा की जाए कि अंग्रेज हुकूमत मुजाहिदीन की सरगर्मियों की तरफ से बेखबर रहे। मैंने इस सिलसिले में हमजाद से मशवरा करना जरूरी समझा। मैं जिस उलझन और परेशानी का शिकार हूँ वो यकीनन तुमसे छुपी हुई ना होगी। क्या ये मुमकिन है कि अंग्रेज मुजाहिदीन की सरगर्मियों से ला इल्म रहें, क्योंकि इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है। मैंने हमजाद को मुखातब किया जो मेरे सरहाने मुअद्दब खड़ा था। इसकी सिर्फ एक सूरत है और वो ये कि मैं हर वक्त जब्बार के हमजाद को उलझाए रखूं। ऐसी सूरत में ये होगा मैं आपके लिए कतई बेकार होकर रह जाऊंगा। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि आप फिर मुझसे कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमजाद ने फिक्रमंद लहजे में कहा, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा मुमकिन है। मैंने खुश होकर कहा, जी हाँ, इस बात को जरा वजाहत के साथ यूं भी कहा जा सकता है कि जब्बार का हमजाद एक तरह से इसके लिए बेकार होकर रह जाएगा, मगर इसके साथ साथ मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। हमजाद ने जवाब दिया, और अगर मुझे किसी मसले में तुम्हारी ज़रूरत पेश आ गई तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि जब्बार का हमजाद भी इसका हर हुक्म सुनने और इसे पूरा करने के लिए आज़ाद होगा। गोया चोट बराबर की होगी। मैंने सोचते हुए कहा, खैर इस वक्त जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आपका ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज़ों को मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बेखबर रखना चाहिए। हमजाद ने कहा, मुझे फिलहाल सिर्फ एक बात के बारे में बताओ कि अब तक तंजीम से मुतल्लक जब्बार ने अंग्रेज़ों को कुछ बताया है या नहीं। मेरी मुराद कल हिंदुस्तान गिर तहरीक और बैरून मुल्क तंजीम की सरगर्मियों से है। मैंने हमजाद से दरियाफ्त किया। चंद लम्हे हमजाद आंखें बंद किए रहा, फिर इसने कहा, अभी तक तंजीम के बारे में जब्बार ने अंग्रेज़ों को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक और ज़राए से तंजीम के बारे में एक ख़तरनाक बात आला हकाम तक पहुंच चुकी है, जो आगे चलकर तंजीम के लिए खतरा भी बन सकती है अगर बर वक्त इसका सद्देबाब न किया गया। ऐसी क्या बात है? मैंने बेताबी से पूछा। तंजीम के कुछ नौवारद अफराद जो बंगाल ही के एक ज़िले से सरहद के लिए रवाना किए गए थे और जिनकी तरबियत पर ज़रूरी तवज्जो सर्फ नहीं की गई थी, इन्हें पानीपत ज़िला करनाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी का सबब, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, खाम तरबियत ही कहा जा सकता है, वरना वो इतनी आसानी से गिरफ्तार न हो जाते। इन्हें जितने अरसे तरबियत की ज़रूरत थी, इससे कबल ही बंगाल के इजला सोनल के एक अमीर ने फारिग कर दिया। इसीलिए इनसे कुछ ऐसी मुश्तबा हरकत सरजद हुई कि एक पठान पुलिस सार्जेंट वरान खान को इन पर शक हो गया कि ये लोग ग्रैंड ट्रैंग रोड शाहराय शेरशाह से आने वाले मशरकी सूबे के लोग हैं। सार्जेंट के जज्बा तशद्दुद को हरकत हुई और इसने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं।
सार्जेंट की बात का वो कोई मुनासिब जवाब ना दे पाए और घबरा गए। सार्जेंट ने इन्हें हिरासत में ले लिया। जब इन मुजाहिदीन को मालूम हुआ कि सार्जेंट मुसलमान है तो इनसे एक और सख्त गलती सरजद हो गई। उन्होंने सार्जेंट से कहा कि वो भी इनके इस नेक मकसद में शामिल हो जाए। जाहिर है ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। सार्जेंट ने इन्हें हवालात में बंद कर दिया क्योंकि वो इंतहाई लालची और दुनियादार शख्स है। इसे तवक्को है कि वो इन लोगों को अपने आकाओं के सामने पेश करके और एक साजिश के सबूत के निशान दही करके इनामो इकराम और अपने ओहदे में तरक्की पाएगा। ये एक इंतहाई खतरनाक बात है। अगर अंग्रेजों के कानों में ये बनक पड़ गई और उन्होंने तहकीक शुरू कर दी तो तमाम मामला खुल जाएगा, क्योंकि डोर का एक सिरा इनके हाथ आ चुका है। हमजाद ने मुझे तफसील से आगाह किया, लेकिन बकौल तुम्हारे मामला अभी निचली ही सतह पर है और वो भी सिर्फ एक सूबे के एक शहर का। क्या इस बात को यहीं दबाया नहीं जा सकता? क्या ये मुमकिन नहीं कि आला हकाम तक ये बात पहुंचने ही ना पाए और निचली ही सतह पर ख़त्म हो जाए? मैंने बेचैनी से कहा। मेरी बात सुनकर हमजाद ने फिर आंखें बंद की और 3-4 सेकंड बाद आंखें दोबारा खोलकर बुड़बुड़ाया। सार्जेंट गरकान खान मुजाहिदीन को लेकर इस वक्त स्टेट कमिश्नर अंबाला की अदालत में दाखिल हो रहा है। और फिर आंखें खोलकर बोला, लेकिन स्टेट कमिश्नर फैसला दे ही देगा जो आप चाहेंगे। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वापस हुआ और इसने आते ही मुझे खुशखबरी सुनाई। स्टेट कमिश्नर ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। इसने फैसला देते हुए कहा था कि वो सादा लोग मुसाफिर हैं और इन पर तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं। हमजाद से ये खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। यकीनन एक बड़ा खतरा बरवक्त इकदाम से टल गया था, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा खतरा मेरे लिए मौजूद था, जब्बार और इसका हमजाद। मैंने चंद लम्हे सोचकर हमजाद को मुखातब किया, तुम यहाँ मेरे रहते हुए हर वक्त जब्बार के हमजाद पर नजर रखो और जैसे ही जब्बार इसे किसी खतरनाक मिशन पर रवाना करे, फौरन बगैर वक्त ज़ाया किए इसकी राह में हायल हो जाओ और इसे इसके मकसद में कामयाब न होने दो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुजाहिदीन की गिरफ्तारी और फिर रिहाई या फरार के बाद अंग्रेज खामोश न बैठेंगे। वो फिर जब्बार से इनके बारे में पूछ-गुछ करेंगे और जब्बार अपने हमजाद के जरिए मुजाहिदीन के नए ठिकाने मालूम कर लेगा। गालिबन तुम मेरी बात बखूबी समझ रहे हो, मैंने हमजाद की तरफ देखते हुए कहा। और इस दिन तकरीबन 4-5 मरतबा हमजाद बस अचानक ही मेरे पास से गायब होता रहा। फिर जो खतरा था वो सामने आ रहा था। जब्बार ने अपने हमजाद के जरिए 4-5 मरतबा मुजाहिदीन के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, मगर हर मरतबा इसका हमजाद नाकाम रहा था, क्योंकि इसकी राह में मेरा हमजाद हायल था। मुझे ये सारा इंतज़ाम करके एक तरफ से कुछ सुकून हो गया था। अब कम अज़ कम मुजाहिदीन महफूज हो गए थे और वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे। इस रात नाहिद से मिलने का वादा था। इस वीराने और गैर आबाद सी इमारत में, जिसके नीचे तंजीम के तहखाने थे। हमजाद आधी रात के करीब मुझे लेकर रवाना हुआ, लेकिन अभी इसे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि इसकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। जब्बार ने एक मरतबा फिर अंग्रेज हकाम के कहने पर अपने हमजाद को मुजाहिदीन की तलाश का हुक्म दिया है। इससे पहले कि वो इसमें कामयाब हो जाए, मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है और इसके लिए मुझे फ़िलहाल आपको यहीं छोड़ जाना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं इसकी बात का कोई जवाब देता, इसने मुझे एक सरसब्ज़ शादाब मैदान में उतार दिया। वहाँ करीबी घने दरख्त थे और नीम तारीकी थी। मैं आहिस्ता से
पेड़ों के दरमियान रेंग गया था ताकि देख ना लिया जाऊं। मैं तकरीबन 1 घंटे वहीं छुपा रहा। इसके बाद हमजात वापस हुआ। कहो क्या खबर लाए? मैंने बेचैनी से पूछा। इस मर्तबा इसने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह मेरी पुरसरार कुव्वतों के इसार से निकलकर अपनी कुव्वतों को बरूए कार ला सके, क्योंकि जब्बार इसे बार बार हुक्म दे रहा था, मगर आपकी दुआ से मैं इस पर हावी रहा और इसे इसके मकसद में कामयाब न होने दिया। अब सुबह तक कोई खतरा नहीं। हमजाद की मुत्तमिन आवाज़ सुनाई दी। वजह मैंने सवाल किया। जब्बार कई रातों का जागा हुआ है, इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी थी, वरना वो अपने आवाज़ खो बैठता। वो इस वक्त एक अयाश अंग्रेज़ अफसर के हमरा लज्जत जिस्म व जान में महव है। जाहिर है कि इस सूरत में वो किस तरह अपने हमजाद को करीब बुला सकता है। तुम रुक क्यों गए? क्या कहो क्या बात है? एक मौका और मिला है, जब्बार को ख़त्म किया जा सकता है। हमजाद ने सरगोशी की। नहीं, ये बुज़दिली है। मेरे अंदर का मुंतज़िम इंसान जाग उठा। इसे तड़प तड़प कर मरना होगा।